کرناٹکا گلبرگہ میں انجمن ترقی اردو ہند گلبرگہ کے زیر اہتمام جلسہ تہنیت کا انعقاد۔ کرناٹکا کے شہر گلبرگہ میں انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے زیر اہتمام کرناٹکا اردو اکیڈمی بنگلور کی جانب سے گلبرگہ کے اصحاب قلم کو اعزازات و انعامات سے نوازے جانے پر بتاریخ 10 اگست 2025 بروز اتوار بوقت 11 بجے صبح بمقام خواجہ بندہ نواز ایوان اردو انجمن کمپلیکس گلبرگہ زیر صدارت جناب ولی احمد جلسہ تہنیت کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں نور الدین نور غوری، ڈاکٹر اکرم نقاش اور ڈاکٹر وحید انجو مرحوم کو ہدیۂ تہنیت سے نوازا گیا۔ اس جلسے کی نظامت کے فرائض جناب صلاح الدین نے بخوبی انجام دیے اور انہی کے شکریہ کے ساتھ یہ یادگار جلسہ دوپہر 1 بجے اختتام پذیر ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
درود ہے۔ حیدیہ محترمہ ڈاکٹر وحید انجم صاحب مرحوم، محترمہ انجمن ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب، ناظم اجلاس جناب محمد فلاح الدین صاحب، معزز خواتین محترمات، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہمارے شہر گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے اردو کے جن قلمکاروں کو کرناٹک اردو اکیڈمی نے پچھلے دنوں ان کی زبان و ادب کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں اعزازات و انعامات سے نوازا ہے۔ آج انہیں انجمن ترقی اردو شاہ گلبرگہ کی جانب سے تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ حاضرین محفل، ناظم اجلاس نے مجھے آج کے جلسے میں شریک مہمانان اور حاضرین کا خیر مقدم کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ تمام کا انجمن ترقی اردو شاہ گلبرگہ کی جانب سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت جناب ولی احمد صاحب، نائب حضرت انجمن ترقی اردو شاہ گلبرگہ فرما رہے ہیں۔ میں آج کی محفل میں آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں تمام اصحاب تہنیت کا فرزن انجمن کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے دلی خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں۔ دائٹ پر تشریف فرما انجمن کے عہدیداران اور میڈیا کے تمام دوست احباب کا بھی آج کی تقریب میں دل کی گہرائیوں سے واجبانہ خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ صدر جلسہ، تمام اصحاب قلم، عہدیداران و ارکان انجمن، ناظم اجلاس سمیت تمام حاضرین محفل بشمول حیدیہ محترمہ ڈاکٹر وحید انجم صاحب مرحوم کا آج کی اس پروخار تقریب میں دل کی گہرائیوں سے استقبال و خیر شاہ گلبرگہ کے عہدیداران و اراکین کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آج انہوں نے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ذریعے دیے گئے اعزازات و انعامات ان حضرات کے لیے، ان قلمکاروں کے لیے، ان اصحاب سفر کے اعزاز میں جلسہ تہنیت کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے ناچیز کو بھی اس جلسے میں شامل کیا ہے۔ اس کے لیے میں ایک بار انجمن ترقی اردو شاہ گلبرگہ کے عہدیداران و اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اعزاز و انعامات سے نوازے گئے قلمکار حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے خدا اردو اکیڈمی کے ارباب مجاز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گلبرگہ ہی نہیں پوری ریاست کے قلمکاروں کو جو سالانہ انعامات و اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اس سال بھی اس روایت کا اہتمام کیا، اور ان انعام یافتگان میں زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ قلمکار گلبرگہ کے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ گلبرگہ کی روایت رہی ہے، یہاں لکھنے پڑھنے کا ماحول، ادبی ماحول زمانے سے رہا ہے، تو وہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو انعامات جن حضرات کو دیے گئے ہیں، ان کی دیری نہ مشق و مذاکرت اور ان کی ریاضت، محنت و لگن کا نتیجہ ہے، لیکن جو بھی محنت، ریاضت، لگن جو بھی قلمکار کرتا ہے، اس کی پذیرائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا لکھنا ضروری ہے۔ پذیرائی کسی بھی میدان میں اس فنکار کے لیے ہمت افزائی کا کام کرتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، تاکہ وہ اسی طرح مسلسل کام کرتے رہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے اس خوش آئند اقدام کے لیے میں ان کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انیس صدیقی صاحب کو بھی مجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں ان کی کاوشیں اہم رہیں۔ میں انجمن کے احباب کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے تو مجھے اس تہنیت سے ہی تعلق تھا
मैं नहीं चाहता था कि अंजुमन के ज़ेर एहतमाम में तहनीत हो, क्योंकि हम खुद इस जगह काम करते हैं और हमारी तहनीत इसी तरह से हो जो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन अनीस सिद्दीकी साहब, अली अहमद साहब और दीगर अहबाब का ये ख्याल था कि तहनीत सबके साथ हो रही तो आपकी भी होनी चाहिए। बहरहाल इसलिए मैं तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। का ऐलान किया गया, तफवीज़ किए गए, उनमें गुलबर्गा ज़िले के 7 कलमकार शामिल थे, जिनमें से 4 जो एजाज़ात थे वो मजमूई खिदमत के लिए तफवीज़ किए गए और 4 कलमकारों की किताबों को इनाम का मुस्तहक करार दिया गया। हमने जम्मू कलेक्टर उर्दू में इन एजाज़ याफ्तागान की तहनीत के लिए इन 7 कलमकारों को हमने नोटिस किया था। अगर किसी न किसी वजह से 4 कलमकार हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, मुख्तसरन, और ये जो शख्सियतें हैं ये ताल्लुक़ की मोहताज नहीं हैं। ज़ाब्ते की तकमील के लिए चंद जुमले आपके ताल्लुक़ के तौर पर पेश किए जाते हैं। डॉक्टर अकरम नहार साहब को सालाना अवार्ड जो 50,000 रुपये पर मुश्तमिल था, उनकी मजमूई खिदमत के लिए अकादमी ने उनकी तफवीज़ किया था। उनका शुमार गुलबर्गा के उन चंद शुरा में होता है जिन्होंने कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई है। पेशे के एतबार से इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने शायरी से कबिस्ता पर नज़र नहीं किया, बल्कि मुसलसल रियाजत से अपने लबो लहजे और उसलूब में इनफरादियत पैदा की है। उनके 2 शेरी मजमूए शेर और बेसहर रात के अलावा रुबाइयात का मजमूआ नशस्त बस्ता शाया होकर खाराइन और नाक़दीन अदब से दाद वसूल कर चुके हैं। शायरी के साथ साथ उन्हें खाका और इंटरव्यू निगारी से भी खासा लगाव रहा है। मशाहिर अदब के इंटरव्यूज़ पर उनकी किताब खाना तकल्लुम एक अहम किताब तस्वुर की जाती है। मारूफ अदीब शायर और सहाफ़ी महमूद अयाज की तहरीरों को उन्होंने महमूद अयाज की तहरीरें के नाम से मुरतब किया। इसके अलावा गुलबर्गा के नुमाइंदा कलमकारों का इंतखाब, अखलाक और जदीद शोरा की गज़लों का इंतखाब, गज़ल के रंग भी उनकी अहम किताबें हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी बेंगलुरु ने इस साल उन्हें सालाना अवार्ड से नवाजा है। हम इस एजाज़ पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे दरमियान एक और साहिब एजाज़ मोहतरम जनाब नूरुद्दीन नूर गौरी साहब मौजूद हैं। ये भी किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं हैं। शायरी के अलावा आपने मुख्तलिफ मैदानों में अपने जोहर दिखाए हैं। तो जनाब नूरुद्दीन नूर गौरी साहब रियासत के एक मंशे हुए और क़ादिरुल कलाम शायर हैं। शायरी के साथ साथ उन्होंने तर्जुमा निगारी के मैदान में भी गिराफ़त खिदमत अंजाम दी हैं। इनका ताल्लुक़ उर्दू सहाफ़त, फिल्म, टेलीविज़न और सोशल मीडिया से बहुत पुराना है। उन्होंने मशहूर टेलीविज़न चैनल्स ETV उर्दू और पीस TV के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए मुकालमे और गीत भी लिखे हैं। ताहम एक शायर के तौर पर उनकी शनाख्त सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। उनके शेरी मजमूओं में नूर शऊर और गज़ल की फ़ज़ाओं में शामिल है। मिठत तमाम उनकी नातों का मजमूआ है। लश्कर बद्र मंसूब एक और अहम शेरी किताब है। इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ा नज़्म का उर्दू में तर्जुमा भी किया है, जो ज़ख्म कसर आवाज़ के नाम से शाया हो चुका है। आज के इस इजलास में उनकी तहनीत पेश की जाएगी। मैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे दरमियान एक और कलाकार जो अवामी सतह पर बेइंतहा मकबूल और मारूफ है, मेरी मुराद डॉक्टर वहीद अहमद साहब से है। ये कसीर जिरा कलमकार रहे हैं। शायरी भी उन्होंने की है, अफसाना निगारी की है, खाते भी लिखे हैं, तहक़ीक़ी नोयत के मज़ामीन भी लिखे हैं, तनक़ीद और तबसरे भी आपका मैदान रहा है। उनकी आखिरी जो किताब आई थी रोशन दरीचे, ये उनके इंतकाल के बाद उनके अहल खाना ने इसको शायर किया था और ये किताब रोशन दरीचे कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इनाम की मुस्तहक करार पाई। और जब अकेडमी का ये सालाना जलसा जिसमें ये इनामात तफवीज़ किए गए थे, बदकिस्मती से वहीद अहमद तो रहे नहीं थे, उनकी अहलिया मोहतरमा या उनकी साहबजादी किसी वजह से उस जलसे में शरीक नहीं हो पाई थी। तो आज के इस जलसे में मोहतरमा अहलिया
डॉक्टर वहीद साहब की खिदमत में अंजुमन की जानिब से तहनीत पेश की जाएगी और वो 25,000 का चेक भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जो अकादमी की जानिब से उन्हें दिया जाना था। तो आज के इस इजलास में मैं डॉक्टर वहीद साहब का खैर मक़दम करता हूँ और उनके यहाँ आमद का खुशी का एहतराम करता हूँ। मैं उन्हें इजलास से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जलसे की तारीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन तरक्की गुलबर्गा का ये तहनीती इजलास आज यहाँ मुनक़िद हुआ, जिसमें जिन एजाज़ याफ्तान को हमने मौजूद किया था उनमें से जनाब नूरुद्दीन नूर साहब और अहिया डॉक्टर नजम वहीद अंजुम साहब और डॉक्टर अकरम खान साहब ने इस तहनीत को यहाँ पर तशरीफ़ लाकर कबूल किया। मैं अंजुमन तरक्की गुलबर्गा की जानिब से सबसे पहले इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जैसा कि अकरम खान साहब ने बताया कि वो खुद अंजुमन के सदर हैं, इसलिए यहाँ की तहनीत कबूल करने में उनको तामुल था और हम लोगों ने बताया कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कोई शख्स अंजुमन से मुतालिक हो और उसको किसी और इदारे से इनाम मिलता हो, एजाज़ मिलता हो तो उसकी तहनीत न की जाए, होनी चाहिए। इसलिए इस जलसे के इनेकाद की थोड़ी सी ताख़ीर हुई। वैसे ये इनामात कर्नाटक आउटडोर अकेडमी बेंगलुरु की जानिब से लगभग 6 महीने पहले फेब्रुवरी में या मार्च की शुरू पहले हफ्ते में जलसा मुनक़िद हुआ बेंगलुरु में और इनामत की नवाजा गया। बहुत सारे शोहरा को, मुबारक को और मजमूई खिदमत के सिलसिले में चलाया गया, वहाँ पर इनामात से नवाजा गया। बहुत बड़ा जलसा हुआ और अकरम खान साहब ने भी जलसे में शिरकत करके अपना इनाम हासिल किया। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कर्नाटक उर्दू अकेडमी हो या गुलबर्गा की अंजुमन हो या कोई और इदारा हो जो ज़बान की अदब की खिदमत करने वाला है, उसके प्रोग्राम्स के चार्ट में अहम जलसों के साथ साथ तहनीती और तारीखी जलसे भी इत्तेहाम रखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर गुलबर्गा में पिछले 2-3 महीनों से तहनीत पर तहनीत मुसलसल तहनीती जलसों का इनेकाद होने आ रहा है। तहनीत होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि तहनीत नहीं होनी चाहिए, मगर उसका म्यार बाकी रखना चाहिए। उस म्यार को हम ध्यान में रखकर तहनीती इजलास का इनेकाद करें तो सबके लिए भी बात, लेने वालों के लिए भी और तहनीत करने वालों के लिए खुशी का बायस है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। आज मुझे बेहद खुशी है कि जनाब अकरम खान साहब की शायरी की नस्ल के बारे में हमारी उर्दू में अच्छी तरह वाकिफ है। वो जितने अच्छे शायर हैं उतनी ही अच्छी नस्ल के वो लिखते हैं। अनिस सिद्दीकी साहब ने उनके खिदमत का जायज़ा आपके सामने मुख्तसर से पेश किया। उन्होंने अब तक कितनी किताबें तस्लीम की, कितने मजमूए कलाम शायर किए उन्होंने और कितने अहम शख्सियात का इंटरव्यू उन्होंने किया। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बड़ा खिदमतगार हमारे दरमियान मौजूद है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके मर्तबा और मुकाम का हमें करना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है कि वो अंजुमन के सही हिस्से से खिदमत में अंजाम दे रहे हैं और उनका जो मुकाम मर्तबा उर्दू अदब में है वो अभी वहाँ तक पहुँच लोगों की नहीं हो रही है कि उनके कलाम को समझे। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि अकरम खान साहब ने अंजुमन की जानिब से दी जाने वाली तहरीक को आपको कबूल करना है। और दूसरे मेहमान भी जनाब नूरुद्दीन नूर साहब के बारे में भी अनिस सिद्दीकी साहब ने उनकी खिदमत जिन जिन इदारों में रही उनका तस्करा आपने किया। नूरुद्दीन नूर साहब व्हाट्सएप ओपन कीजिए, रोज़ाना उनका कुछ ना हमको पढ़ने को मिलता है। उनकी शायरी के तेज हाथ हैं कि एक जहर में उनका चाहत में लिखते रहते हैं, उनके मौज़ूआत पर भी लिखते रहते हैं, हालात हाज़िरा पर भी उनकी नज़र है उस पर भी लिखते रहते हैं। आपके वक्त हुए अतराफ़ की से मुंसलिक हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उर्दू के जलसों में शिरकत करना, मुशायरों में शिरकत करना आपकी शख्सियत का अहम हिस्सा है। मैं बहुत खुशी का इज़हार करता हूँ इस मौके पर कि नूरुद्दीन नूर साहब ने हमारे दावत को कबूल करवाया और यहाँ पर अपनी तहनीत का हमें मौका दिया। डॉक्टर वहीद साहब जिनका ताल्लुक अंजुमन तरक्की उर्दू शाह गुलबर्गा से रहा
एक लंबे अरसे तक करते मिलता है, लेकिन फिर आखिरी साल तक उसको ऑफिसर है। एक अच्छे शायर थे, अच्छे अदीब थे, बर्जस्तगी थी उनके कलाम में और मुखर्रिर भी अच्छे थे। उनकी तकरीबन किताबों की रस्म जब अंजुमन तरक्की गुलबर्गा की जानिब से हुई और यहाँ गवाह है कि वही साथ में किताबों की रस्म रहती है जो यहाँ मुनक़िद हुई। बड़ा महसूस जैसे उनके तारीफ में हुई यहाँ पर उनके लिए मुनक़िद किए गए अच्छे शायर अदीब थे। वो मुझे बहुत खुशी है कि कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने उनको जुलाई के नाम से नवाजा। अभी इंतजार में अकेडमी की जानिब से उनकी खिदमत में जो अमल सैंक्शन हुई थी उसका चेक आपने अभी अहजा मोहतरमा डॉक्टर राहुल को पेश किया। ये बड़ी अच्छी रिवायत है। अंजुमन तरक्की उर्दू गुलबर्गा यहाँ पर करते रहते, मगर ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने भी अपना दायरा का बहुत वसी कर दिया है। शुक्रिया अदा करने के मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर्नाटक उर्दू अकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुलबर्गे के कलमकारों को उनके एजाज़ात से पाया। ये बहुत उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इस जैसे कि लिहाज के लिए अंजुमन तरक्की गुलबर्गा ने एहतमाम किया उसका, अंजुमन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आखिर में सबसे पहले हमारे इनाम याफ्तागान जितने भी डॉक्टर करम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब नुरुद्दीन गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अहलिया डॉक्टर वहीद अमीन साहबा जो यहाँ मौजूद है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सदर इजलास जनाब वली अहमद साहब और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में मौजूद इस इजलास में हाज़रीन जलसा ख़वातीन और हज़रात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ नात पेश करने वाले मौलाना नूर साहब का और मोहम्मद मेहनती साहब का और क़िरात पेश करने वाले मौलाना नूर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि इसकी बरकत इस पर ख़ान है। इतना कहते हुए मैं जो संगीत बर्दाश्त करता हूँ। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की क़दावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा। बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.